So essay, what is essay? Essay होता क्या है? What actually is essay? What is the definition of essay? Essay is basically, essay is what you say. Simple definition of essay is what you say. आप जो भी बोलें, that is essay. Essay, essay means you take on a topic. You take on a given topic. आपका जो भी टेक हो, आपका जो भी ओपिनियन हो, इट कैन बी आइदर वे, इट कैन बी फॉर और अगेंस्ट. सो उस पर कोई सेकंड राय नहीं होती. ये दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप इस तरह का, वो दैट solely depends on you whether to go far or against. So simple definition ऐसे की ये है कि ऐसे is what you say, what is your take on a certain topic. So taking discussion further, what are the myths about essay? First and foremost myth that we most of the time hear, please bear with me, I would be admitting other newcomers. So सबसे बड़ा जो myth है ऐसे के बारे में वो ये है कि ऐसे is the paper of English language. Partially true in a sense that you cannot pass it without having uh, a functional English, without having a grip on a functional or a clear English where you can communicate your message. ये तो यहाँ तक तो ठीक है बात. But to say that it is solely the paper of English language is nothing but a myth, a hoax. Why? Because if that were the case, in fact, then all those candidates who have a very firm grip on English language, or especially those who have studied from foreign universities, or who do not speak any other language other than English, even at their houses, at their homes, especially those who are from so-called elite class, uh, then they all must have passed CSS exam in their first attempts. And in fact, what we learn most of the time that they flunk the essay. So this proves the point that the essay is not the paper of English language alone. It is the mixture of both. Rather, I would say, as far as language is concerned, you simply need a functional English. Functional English. Only functional English. You need only functional English that may be understood by a metric student. Not more than that, metric student. So ये बात पहले जहन से निकाल दें कि बस ऐसे का मतलब है कि आपने हाई फाई अंग्रेजी लिखनी है तो then you would pass it. No, not at all. आपने अंग्रेजी वो लिखनी है जो एक मैट्रिक के स्टूडेंट को समझ में आ जाए. तो उसमें हम गलती क्या करते हैं यहाँ पे? गलती जो मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी मेक, we keep on we keep our focus on improving the language, English language. So while doing so, what we do, we try to impress the examiner. How we try to impress the examiner? We try to memorize certain expressions. We try to memorize many idioms. We try to memorize high-fi words, very high frequency words. Then after doing that, we keep our focus on using those words. While we do that, while we keep our focus on using those words, what we forget, or what we the focus that we lose, that is of what we are trying to convey. तो हम तो वो अंग्रेजी तो हम अच्छी लिख लेते हैं, मगर उसमें हमारा जो फोकस है वो चला जाता है, हमारा मैसेज से ध्यान हट जाता है. सो नेवर ट्राई टू डू दैट. अब ये तो होगा सिंपल सा सिंपल कॉन्सेप्ट. अच्छा, दूसरी चीज जो ऐसे के पेपर है, आपको सब आपको बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे किस तरह से आउटलाइन बनाई जाती है. आई वुड आल्सो बी डिस्कसिंग दिस एज वेल. But remember, most important thing is to tell you what not to be done, what does not need to be done. That is more important to know, because if you know that, if we do not take this path, we would not fail. Then the only thing that we need to do,
taking that path that may enable us for a success. तो करना क्या नहीं है, एक तो वो ऐसे नहीं करने, you do not have to attempt those essays जिसमें इज्म आता हो। हाँ, एक फेमस इज्म हो कोई, तो वो तो आप भले कर लें, जैसे टेररिज्म हो गया, एक्सट्रीमिज्म हो गया, यू मे अटेम्प्ट दैट। 1 second प्लीज। भाई ये किसका वीडियो आ गया है? ये यार वीडियो तो अपना बंद कर दें प्लीज। ये अपना वीडियो बंद कर दें जनाब। सो आई वाज टेलिंग दैट करना क्या नहीं है, आपने वो ऐसे नहीं करने जो इज्म पे आते हैं। इज्म पे ऐसे जैसे वो इज्म जो फेमस हो, वो इज्म तो आप भले कर लें, जैसे टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म। बट वो इज्म जो आपने पहले कभी नहीं सुने हैं, जैसे ह्यूमनिज्म, जैसे आपका हो गया एग्जिस्टेंशलिज्म, क्योंकि ये जो इज्म होते हैं, इट इज सेड दैट दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज अ ट्रेपर। तो उसमें होता ये है कि आपको अगर उसके बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव मालूमात नहीं है, आपने अगर वो चीज़, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट पहले कहीं नहीं पढ़ा आपने ड्यूरिंग योर स्टडी कॉम्प्रिहेंसिवली, नॉट एज अ वर्ड, अगर आपने नहीं पढ़ा, यू कैन नॉट अटेम्प्ट दैट। जैसे ह्यूमनिज्म का ऐसे 2006 में या 5 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें हुआ क्या था कि जिनको अच्छी तरह से आता था, यानी जो लिटरेचर से जो जिनका बैकग्राउंड था, दे हैड अ स्कोर मोर देन 50। मगर जिनको पता नहीं था, उनकी अंग्रेजी भी अच्छी थी, दे अटेम्प्टेड प्रीटी वेल फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, सो कॉल्ड पर्सपेक्टिव, दे आर फ्लंक्ड इट। क्यों? क्योंकि वो समझते थे ह्यूमनिज्म मींस ह्यूमैनिटी, ह्यूमनिज्म मींस ह्यूमैनिटी, while humanism itself is a different topic, that was a movement, a different literary movement. So वो इज्म नहीं करने जो इसकी जिसके बारे में आपको पता नहीं है, आपको बैकग्राउंड नहीं है। फेमस इज्म हो गए तो वो तो भले कर लें। अदर देन दैट वो ऐसे नहीं करने जो कोटेशन पे हो, और वो कोटेशन उसका वो कोटेशन आपने क्लियरली कहीं पे पढ़ी ना हो। फॉर एग्जांपल है यू डू यू विन, उसका बाजार तो मीनिंग उसकी यही है, मगर शायद उसका कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो अगर वो कोटेशन में आता है। तो अगर कोटेशन में नहीं आता, तो देन यू कैन अटेम्प्ट इट इन अ जनरल वे, इन अ वे दैट यू मे जस्टिफाई योर टॉपिक। तो ये चीज़ें नहीं करनी। अच्छा, अब आते हैं ऐसे की तरफ। ऐसे के काइंड्स कितने होते हैं? अच्छा, आपकी जो भी क्वेरीज हो ना, आप चैट बॉक्स में सेंड कर दें, देन आई वुड बी डिस्कसिंग वंस आई एम डन विद माय लेक्चर। आपकी जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चन हो, जो पॉइंट आपको समझ में ना आए। तो ऐसे के काइंड्स कौन से हैं? ऐसे के, अच्छा, आपने किताबों में तो कई काइंड्स पढ़े होंगे ना, यू माइट हैव स्टडीड, रेड, डिस्कस्ड, और यू माइट हैव बीन टॉट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऐसे राइटिंग। उसमें डिस्कसिव ऐसे, आर्गुमेंटिव ऐसे, लिटरेरी ऐसे, डिस्कसिव ऐसे, पता नहीं, देयर आर different kinds of essays. But then we get confused while reading different kinds, because they all, according to those books where we read them, they all demand a different strategy to attempt that certain kind. But for the purpose of learning and for the purpose of understanding of candidates, we have divided essay into two kinds only. And I hope and I assure you, all the essays of the world would fall under either category. Only two kinds. We have divided essays into two kinds. First is
argumentative essay, and another one is factual essay. These two kinds are there, only these two kinds. All the essays of the world would fall under the kind or category of either of these essays. Let me give you an example. Argumentative essays are those essays. Argumentative essays are those essays wherein you take a side. You take a side. वो ऐसे होते हैं जिसमें आप साइड लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. आप यहाँ साइड लेते हैं या फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम कह लें यू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ. जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. डू यू एग्री? So you ask a question from yourself whether you agree or not, or whether that is the case or not. Gender equality is a myth. Is it so? Is it the case? All these essays where we ask a question, where we take a side, where we ask a question from ourselves whether we agree or not, all these essays fall under either under this category, that is argumentative essay. While all those essays where you do not take a side, all those essays would fall under the category of factual essays. So we have basically divided essay writing into two kinds. Argumentative essays, where you take a side, you ask a question from yourself. For example, as I gave you example, gender equality is a myth. Do you agree? Is it so? Is it the case? Yeah, that is argumentative essays. All those essays wherein you do not take a side, you simply discuss what the phenomena is, what the fact is. All the essays fall under the category of factual essays. That, for example, if we convert that essay, gender equality is a myth, that is argumentative essay, then we can convert that very essay into a different into a factual essay, gender equality in Pakistan. So that become factual essay. You do not take a side, you do not take a position, a stance, you simply write. So these are only these two essays. If you have any confusion, any query, we'll be discussing whether you may have many questions and queries कि सर नहीं ये फलां ऐसे किस में आएगा, कि जो भी केस essays है ना जिसमें आप साइड लें, एक पोजीशन लें, अपने आप से क्वेश्चन करें, all these essays fall under the category of argumentative essays. For example, democracy is the best revenge. Democracy is the best revenge. Do you agree? Is it so? Is it the case? That is argumentative essay. Democracy in Pakistan, factual. You do not take a side, you do not take a position, you do not ask a question from yourself. For the purpose of attempting, you may ask a question from yourself, okay, what is democracy, blah blah, but you not take a side. Now we'll be telling you, I would be telling you how to attempt either of the essays. अब ये तो हमने क्लियर कर लिया कि दो एसेज हैं, दो काइंड्स हैं ऐसे कि एक आर्गुमेंटिव है, एक फैक्चुअल है. तो हम ये देखेंगे, वन सेकंड प्लीज. So ये तो हमने क्लियर कर लिया. We have established that there are two kinds of essays: argumentative essays wherein you take a side, you take a position. Then there are factual essays where you just discuss. Now उसमें हमने देख लिया कि कौन सी चीज हो, कौन सा इंडिकेटर हो तो वो होगा आर्गुमेंटिव एसे, कौन सा इंडिकेटर ना हो तो वो होगा फैक्चुअल एसे. इन दोनों को अटेम्प्ट करने के दो टेक्निक्स हैं. आर्गुमेंटिव एसेज जो हैं उसको जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें हम we ask a question from ourselves and we usually start from how. Though we may not, I'm again emphasizing, though we may not write how on our answer copy, but the word how must be reverberating in our mind. It must be echoing in our mind, because if we do so, we would be gathering the ideas, we would be generating the ideas. So as I said, we would start argumentative essay with the technique how. For example, gender equality is a myth. How gender equality is a myth? How gender equality is a myth?
then you prove it. When you ask yourself a question, how gender equality is a myth, then you prove in social sector and different arenas. While those essays that fall under the category of argument, factual essays, you do not ask a question from yourself, or you do not start with how, you start with what. For example, that essay, gender equality in Pakistan. What is gender equality? What is the status of gender equality? What are the hurdles to gender equality? What is the impact of not having a gender equality? What? Remember, we are repeatedly focusing on what. The indicator that we have, that is what. So what is gender equality? What is the status of gender equality? What are the repercussions of not having a gender equality? What is the solution for attaining gender equality? So we start factual with what, and we start argumentative with how. This is the technique, basic technique. Now I would be telling you, वो तो मैंने पहले आपको बता दी कि क्या करना है क्या नहीं करना. अच्छा, जैसे ही आपके हाथ में कापी आए ना, करना क्या है कि आपने वो जो ट्रेपर जिसे मैंने कहा, जैसे एजम वाले कहे या जो कोटेशन वाले कहे, उसको आप क्रॉस लगा दें, क्रॉस लगा दें. जो करना है उसको टिक लगा दें, टिक लगा दें. देन गो ऑन द लास्ट पेज ऑफ योर, जो भी करना है देखने करना है क्या है, गो ऑन द लास्ट पेज ऑफ योर आंसर कॉपी. वहां पे लिख दें रफ वर्क, रफ वर्क लिख दें. फिर जो भी कॉन्सेप्ट, जो भी आइडिया, जो भी थीम आपके जहन में आ रहा है रिगार्डिंग दैट टॉपिक that you are going to attempt or that you have thought to attempt, उसको लिख दे जाएं, लिख दे जाएं. Don't stop. If you stop, you get stuck. Remember, because you are already under stress. आपको पहले ही स्ट्रेस होता है. अगर आप स्टॉप करेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे. तो स्टॉप ना करें. Don't think whether the idea is relevant or irrelevant, whether the idea is strong or weak, whether the idea is historically correct or incorrect. Don't stop now. Don't stop now. Keep on doing that. Keep on doing that exercise that we call brainstorming. जिसको हम brainstorming, आप उसका नाम कुछ भी रखने, as Shakespeare said, what lies in name. तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करें आप, कम से कम आधे घंटे तक करें. जो भी आइडिया आपके जहन में आता जाए ना, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं. Keep writing those ideas, keep writing those ideas, keep writing those points regarding your outline. Once you are done it, आधे घंटे हो दिया, कर दिया आपने, then excuse me, देन आप उसको फिर सॉर्ट आउट करें, जम्बल डाउन करें कि अच्छा कौन सा पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, हिस्टोरिकली कौन सा पहले होना चाहिए, ऑर्डर के हिसाब से कौन सा, अच्छा कौन सा ये इररिलेवेंट है स्ट्राइक डाउन कर दें, वो बाद में करें. मगर अगेन आई एम्फेसाइज, टॉपिक आपने लिख दिया, लास्ट पेज पे टॉपिक जरूर लिखें, एक सर्किल कर दें. जो भी आइडिया आपके जहन में आता जाए, लिखते जाएं, लिखते जाएं, लिखते जाएं. डोंट स्टॉप, प्लीज प्लीज डोंट स्टॉप. आई हैव सीन इफ यू स्टॉप यू वुड गेट स्टक. डोंट स्टॉप. अच्छा, होता ये है कि अब मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड कि सर आइडियाज आए कहाँ से, हमने तो टॉपिक पढ़े नहीं होते, कोई ऐसे टॉपिक आ जाते हैं, आइडिया कहाँ से लाएं हम. I can assure you that you can pass an essay without having enough knowledge. I'm not saying zero knowledge. Without having enough knowledge, you can pass an essay, provided you follow certain tips and techniques. Wow, how? So ये जो क्वेश्चन है कि सर कहाँ से आइडिया आए, आइडिया ढूंढने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं. we find our ideas in the systems of society. हमें आइडिया, कोई भी एक टॉपिक है जिस पे आइडिया हमारे जहन में कुछ आइडिया नहीं आता, लुक इनटू द सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी, you would find ideas on it, even if you do not have enough knowledge about it, about the given topic. फिर भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने, अच्छा वो कहाँ से आए, सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी. जैसे मैंने कहा कि वो आप आइडियाज देख लें फ्रॉम सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी, वहां से आपको आइडिया मिलेंगे. सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, कल्चरल सिस्टम, एजुकेशनल सिस्टम. वहां से आपको आइडियाज मिलेंगे.
on a topic that you may not have studied prior to your exam. उस पे भी मिल सकते हैं आपको. जैसे डिस्कस करते हैं आप कैसे, फॉर एग्जांपल जेंडर इक्वलिटी मिथ. सपोज करें शायद आपने वो टॉपिक ना पढ़ा हो, जेंडर इक्वलिटी मिथ. तो आपको इन चीज़ों में अगर आप देखेंगे ना, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चर सिस्टम, तो उसको आपको सपोर्ट में नॉलेज भले ना हो, फैक्ट्स ना हो, डेटा ना हो, आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे आपको टू सपोर्ट योर टॉपिक. और थीसिस स्टेटमेंट वो भी हम डिस्कस करेंगे, थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है और टॉपिक सेंटेंस क्या होता है. आइडियाज आपको मिलेंगे सिस्टम से, सिस्टम्स ऑफ सोसाइटी. ये आप नोट डाउन कर लें. जब भी आप whenever you are stuck and when you are unable to find arguments for the favor or for your topic to substantiate your point of view, look into the systems of society when you have such kind of especially such essays. So we will be discussing, for example, gender equality is a myth. So we took a side, we agreed that gender equality is a myth. Now, as I said, we would have to find ideas for our support to substantiate our point into the systems of society. Look at the economic system of society. हमने कहा gender equality myth है, that does not exist in reality. That's a myth. It's a hoax. Economic system में देखें, simple है भाई. आपके in your society, how many women earn? Definitely less than men. Less than men. Everybody agrees. इसके लिए you do not need to study many books. You can just have a look in your society. More women are in the field, even in agricultural field, industrial field. Industry में देख लें आपको ज़्यादातर मेल ही मिलेंगे. CEO देख लें आप टॉप क्लास कंपनीज के, क्या मिलेंगे आप, वो आपको वही मिलेंगे, मेल मिलेंगे. आपके टॉप क्लास, टॉप आपकी रिच पीपल हैं, वो आपको मेल मिलेंगे. तो इकोनॉमिक्स छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बिकॉज we will be discussing other points as well. तो आपको कंपनीज के जहाँ भी आप देखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम में आपको देखेंगे, you would find that gender equality is a myth, because you would find that all the economic fields are dominated by men. While looking at the political system, मैंने कहा ना इन systems में देखना होगा, आपको ढूंढना होगा. Political system में अगर आप देख लें, तो अगर आप देखें कि आपके वहाँ भी आपको यही मिलेगा कि मैन हैव डोमिनेटेड द फील्ड. आप दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट देख लें, पाकिस्तान के हेड्स ऑफ स्टेट देख लें, दुनिया के हेड्स ऑफ स्टेट देख लें, पाकिस्तान के करंट आप कैबिनेट देख लें, उसमें हाउ मेनी वुमेन डू वी हैव. आपको एग्जैक्टली फिगर ना हो, यू कैन से दैट मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तानी कैबिनेट इज डोमिनेटेड बाय मैन. मैं कह रहा हूँ कि अगर आपके पास नॉलेज ना भी हो, तो आपके पास ये चीज़ें हो, तो नॉलेज हो तो वेल एंड गुड. उसमें ये आई कैन नॉट डिनाई कि नॉलेज होगी तो ज़्यादा स्कोर आएगा, ज़्यादा सब्सटेंस होगा उसमें. तो मेरी पॉइंट ये कि आपको यू डोंट नीड टू पैनिक while attempting the essay. When you find the list of essays and you see that there is none of the essays that you are prepared for, तो उस वक्त पैनिक नहीं, यहाँ से ढूंढ के आपको अपने आहिस्ता आहिस्ता आइडिया बनाने हैं. तो पॉलिटिकल सिस्टम में देखना, आपको हेड ऑफ स्टेट वुमेन नहीं मिलेगी, आपको पाकिस्तानी कैबिनेट में वुमेन बहुत कम मिलेगी. One second please. वो आपको पाकिस्तानी कैबिनेट में आपको नहीं मिलेगी, मतलब कम मिलेगी. मतलब एक जरताज गुल है, दूसरी वो एक ये फेडरल कैबिनेट में, तो यही मुझे जो याद आ रहा है, शी इज़ द ओनली वन. वो थी मैडम फिरदौसी, अब वो शी इज़ नो मोर. सिंध कैबिनेट की देख लें आप, हेड ऑफ स्टेट देख लें, हेड ऑफ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन देख लें, यूएन के देख लें, ईसीओ के देख लें, सार्क के देख लें, यूरोपियन यूनियन विच इज़ नो मोर देयर, उसके देख लें, सब के आप देख लें. हेड ऑफ स्टेट आपको वहाँ पे यू वुड फाइंड दैट देयर आर मैन प्राइमरली एंड मेजॉरिटी. पॉलिटिकल सिस्टम में देख लें आप, इवन अमेरिका, द कंट्री विच always talks about equality, gender equality and freedom and etc and etc. There has never been a female head of state. Economic system में हम देख लें, religious system में देखें, though it's a very sensitive topic to talk on religion. तो religious system में देख लें, उसको अगर you do not talk about any particular religion,
talk generally, because it's a bit sensitive topic, especially in our perspective. तो उसको आप देख लें तो आपको prayer leaders, whether it's in Christianity, it's in Hinduism, it's in Judaism, it's in Islam, you do not see that prayer leaders are women. Prayer leaders are primarily men. There has never been a prophet, or there has never been a pioneer of any major religion from women. All are from men. And coming to the rights of women in different religions, so they are not given as many rights as are held by men, male counterpart. सोशल सिस्टम में देख लें, आपके माशरे में ओवरऑल देख लें कि उसको आपको पार्क्स में कौन नज़र आता है, आपको गाड़ियों में कौन नज़र आता है, आपको मेजर डिसीजंस कौन लेता है, पेरेंटिंग करते हुए, पेरेंट के भले पेरेंटिंग ज़्यादा उसका मदर का ऑर्डरमेंट, मगर बच्चों के लिए ज़्यादातर डिसीजन मेल ही लेते हैं. कल्चरली भी आप देख लें, जो टेबूज अटैच किए जाते हैं वुमेन के लिए, फॉर एग्जांपल जेंडर इज़ अ वीक, फीमेल इज़ अ वीक, टेबूज अटैच किए जाते हैं. और इफ फीमेल इज स्मोकिंग, it's taboo, it's considered a stigma. Even in advanced countries, it's considered a stigma. Culturally, even culturally, gender equality is a myth. So I hope यहाँ से आपको टॉपिक मिलेंगे, यहाँ से आपको आइडियाज मिलेंगे. इवन ये तो मैंने कहा ना आपको, वो फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट है. फैक्चुअल में भी ये देखें, व्हाट इज जेंडर इक्वलिटी. कोई भी एक सिंपल सी डेफिनेशन, कोई 2-4 डेफिनेशन अगर आप बना लें, अपनी सी बना लें, कोई इशू नहीं है उसमें ना. उसमें भी आप ये व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जेंडर इक्वलिटी इसी में डिस्कस करेंगे. अच्छा, इकोनॉमिक फील्ड में क्या स्टेटस है, वो फैक्चुअल से जा रहे हैं. जेंडर इक्वलिटी इन पाकिस्तान, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जेंडर इक्वलिटी इन इकोनॉमिक फील्ड, इन पॉलिटिकल फील्ड, इन रिलीजियस फील्ड. फिर आप वही लिखें. उसमें आप थोड़ा डिफरेंट आर्ग्यूमेंट मोल्ड करते हैं, वो मैं बताऊंगा कि उसमें आर्ग्यूमेंट कैसे मोल्ड करेंगे, इसमें आर्ग्यूमेंट कैसे मोल्ड करेंगे. So I think so far that point is clear, how argumentative essay is attempted and how factual essay is attempted, and from where we can find the ideas in the support of our essay. अच्छा, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं where we can say the isolated outlines, जिसको हम कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जहाँ पे आप एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज़्यादातर यहाँ से नहीं लेते, आप पर्सनैलिटीज लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. तो यहाँ पे आपको यहाँ से तो आर्गुमेंट मिल सकते हैं, मगर ज़्यादातर इस तरह के ऐसे में इस तरह के ऐसे में आप एग्जाम्पल्स लेते हैं पर्सनैलिटी से. मैन इज द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी. You'd be discussing the life of Prophet, peace be upon him. You'd be discussing the life of Qaadi Azam Ul Jinnah. You'd be discussing the life of Nelson Mandela. You'd be discussing the life of King Martin Luther. You'd be discussing the life of Sir Syed Ahmad Khan. You discuss the life of other luminaries that have revolutionized different fields where they have worked. So इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड आउटलाइंस. उसमें ये फार्मूला शायद इफेक्टिव ना हो. सो डू नॉट थिंक दैट दिस इज ऑल टाइम फिट फार्मूला. उस तरह के ऐसे में शायद ये काम ना कर जाए ना. अच्छा, आते हैं अब उस बात पे कि एक्सपेरिमेंट से अच्छा, ज़्यादातर जो कन्फ्यूजन होता है कैंडिडेट्स को, वो होता है टॉपिक सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट. Believe me, currently, even before that, or even after that, there might have been many bureaucrats who have passed the essay without knowing what actually is thesis statement. So don't worry about that if you do not know, though I would be telling and discussing. The thesis statement means your take on a topic. Your take. Simple. It can be in first line. For example, gender equality is a myth. It can be direct or indirect. Gender equality is a myth. टॉपिक है आपका, आपने पहली लाइन लिख दी थी कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. ये आपका थीसिस स्टेटमेंट होगी. सो आपका जो टेक होता है वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है. ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी. इनडायरेक्ट कैसे होगा कि आप पहले जनरल स्टेटमेंट दे दें. फॉर एग्जांपल, genders in all over the world, or genders have rarely
enjoyed equality since time immemorial. आपने जनरल स्टेटमेंट दे दिया. फिर कहा कि looking at the different arenas or different fields of life, ranging from economic to political, from religious to social, from cultural to educational, it is observed that male and female rarely enjoy equality. The farmer, means male, is often seen possessing more power, more authority, more economic resources than the latter, that is female. All these things point to the fact that gender equality is a myth. ये आपकी आखिरी लाइन में आपके आगे बता दिया कि आपका ये स्टैंस है. आप ये पॉइंट्स इनडायरेक्टली आपने बता दिया. ये आपका स्टांस है, ये आपका थीसिस स्टेटमेंट है. सो आई होप so far that is clear. Then coming towards topic sentence. Topic sentence means the sentence that is about the topic. वो डेफिनेटली हर पैराग्राफ में आपका डिफरेंट टॉपिक होता है, क्योंकि एक पैराग्राफ में आप डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमी से रिलेटेड द स्टेटस ऑफ वुमेन, दूसरे में आप पॉलिटिकल करेंगे, तीसरे में रिलीजियस करेंगे, चौथे में आप सोशल करेंगे, कल्चरल करेंगे. तो पहला जो आपका जुमला हो, भले पहला जनरल हो या डायरेक्ट हिट हो, जो आपके उस टॉपिक को हिट करे, दैट इज कॉल्ड टॉपिक सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि लुकिंग एट द फील्ड ऑफ इकोनॉमी और लुकिंग एट द इकोनॉमिक फील्ड, द पिक्चर और द स्टेटस एंजॉयड बाय वुमेन इज डिसमल. ये आपका टॉपिक सेंटेंस है. ये आपका टॉपिक सेंटेंस जिसमें आप बताएंगे कि आप यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. आगे देन यू हैव बॉडी, देन यू हैव कंक्लूजन. बॉडी में आप प्रूव करेंगे कि हाउ वुमेन डज नॉट एंजॉय इक्वल स्टेटस विद रिगार्ड टू मैन, और हाउ जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. आप प्रूव करेंगे. एट द एंड देन आपका कंक्लूडिंग लाइन होगी 10. उसमें आप ये चीजें लगे 10 हैंस therefore gender equality seems elusive. कोई भी फिर आप वर्डिंग, आप वर्ड डिपेंड्स अपॉन यू. आपको सिंपल therefore gender equality is a myth. अगर आप ज्यादा कंफ्यूजन में ना जाएं, ज्यादा उसमें परेशान में जाएं, तो ये भी लिख दें, दैट इज इनफ. अच्छा, वो ज्यादातर ये होता है सवाल कि आउटलाइन तो कैसे शुरू करें, कैसे लिखें आउटलाइन. वही मैंने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दें आउटलाइन को. शुरू वाले आधा घंटा दें, फिर उसको ऑर्डर दें, फिर आप उसको करें. आपका पहला घंटा सवा घंटा भी जाता है ना आउटलाइन और इंट्रो पे, दैट्स इनफ. ये अब देन यू जस्ट हैव टू एलोबोरेट ऑल द पॉइंट्स दैट यू हैव रिटन. अच्छा, इंट्रो जो है दैट शुड टेल द एग्जामिनर व्हाट इज इनसाइड. अच्छा, जो इंट्रो है, जिस तरह से इंट्रो लिखते हैं आपकी बॉडी के पैराग्राफ भी उसी टेक्निक पे लिखे जाते हैं. एक आपका टॉपिक सेंटेंस होता है या थीसिस स्टेटमेंट जिसे कह लें, देन बॉडी जिसमें आप प्रूव करते हैं अपनी पॉइंट, देन कंक्लूड. तो इंट्रो पे आप क्या करेंगे, जिस तरह की आपने वो ऑर्डर दिया है आउटलाइन में, आप इंट्रो में वही ऑर्डर लगाएंगे अपने ऐसे को, भले वो इनडायरेक्टली आप डिस्कस कर लें. इनडायरेक्टली मेरी मुराद क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल कहा है कि जेंडर इक्वलिटी is a myth, then you have proved from economic field, from religious field, from social field, from political field, from political arena, you have discussed all this. तो उसमें आप लिखेंगे, जैसे मैंने कहा है कि जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ. आप कहेंगे, आप इनडायरेक्टली ये चीजें लिखेंगे. आपने ऑर्डर लिखा, आपने पहले पॉलिटिकल लिखा है, देन आपने इकोनॉमिक लिखा है, देन आपने रिलीजियस लिखा है. फॉर एग्जांपल 3 ऑर्डर आप देते हैं. तो आपका पहले आपका जनरल स्टेटमेंट, थीसिस स्टेटमेंट हो गया कि वुमेन डू नॉट एंजॉय इक्वल स्टेटस विद मैन. वुमेन डू नॉट एंजॉय इक्वल स्टेटस विद मैन. आपने ये पहला आपने थीसिस स्टेटमेंट अपना लिख दिया. वुमेन डू नॉट एंजॉय इक्वल स्टेटस विद मैन. आपने एक थीसिस स्टेटमेंट लिख दिया. तो मैंने कहा आपने ऑर्डर क्या लिखा था आउटलाइन में, पॉलिटिकल फील्ड आपने लिखी, फिर इकोनॉमिक फील्ड आपने लिखी, फिर रिलीजियस फील्ड. The economic world or the economic field or the economic arena portrays that women have less authority than men, ranging from the wages earned by women to the positions of power held by her. अब यहाँ पे बस आपने इनडायरेक्टली बता दिया कि यहाँ पे आपने वुमेन इकोनॉमी में, इकोनॉमिक फील्ड में आप ये डिस्कस करें. देन मोर ओवर
political field is also not much promising for women. अब इस तरह से बताएंगे, is not much promising, wording different up to is not much promising for women, because because it's observed or it's seen that rarely there are the heads of women, there are heads of state which are from other gender, that is women. फिर आप ऑर्डर वही होगा, आपने पहला लिखा economic then political. Similarly, the religious domain is also dominated by male counterpart. Moreover, फिर आप इसको आगे लेते जाएं तो ऑर्डर आपका यही बनेगा